CNN TV کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فلاحی ریاست کا قیام میری اولین ترجیح، جہاں قانون کی حکمرانی اور برابری ہو، وزیر اعظم عمران خان۔ الیکشن ٹریبیونل نے بلوچستان کے حلقہ این 265 کا الیکشن کالعدم قرار دے دیا۔ پاک فضائیہ نے اہم سنگ میل عبور کر لیا، JF-17 طیاروں کی تقریب رونمائی۔ پاکستانی قوم کو موجودہ حالات میں کشمیریوں کا حوصلہ بڑھانا ہوگا، مشال ملک۔ امریکہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے اور ہم بن رہے ہیں، فضل الرحمان۔ سری لنکا کے خلاف سیریز کو آسان نہیں لیں گے، سرفراز احمد۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات میں چند روز باقی، لبرلز کا روسٹر نامکمل۔ اینڈریو شیئر کا حکومت میں آ کر SNC لیولین معاملے کی تحقیقات کا وعدہ۔ NDP کا اقتدار میں آ کر 5 لاکھ نئے گھر تعمیر کرنے کا اعلان۔ کیپس کی جانب سے معافی مانگنے پر خوشی ہوئی میکسم برنیر۔ امریکہ امن مذاکرات شروع نہیں کرتا تو جنگ کے لیے تیار ہیں طالبان۔ امریکی صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے مشکل آئینی مراحل سے گزرنا ہوگا، ماہرین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے، وزیر اعظم عمران خان نے ایشیا سوسائٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلاحی ریاست کا قیام میری اولین ترجیح ہے۔ فلاحی ریاست جہاں قانون کی حکمرانی اور برابری ہو، ریاست مدینہ میں حکمران بھی قانون کے تابع تھے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا خدشہ ہے کشمیر میں کرفیو اٹھتے ہی خون ریزی ہوگی، حالات ہاتھ سے نکلنے سے پہلے دنیا مسئلہ کشمیر پر مداخلت کرے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، جو سمجھتے ہیں جنگوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ایشیا سوسائٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ورلڈ کپ فائنل کھیلنے سے ایک دن پہلے جیسا محسوس کر رہا تھا، کل خطاب سے پہلے آج کچھ ویسے ہی جذبات ہیں۔ پہلی مسلم ریاست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ جدید ریاست تھی جس نے مسلم تہذیب کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 24 سال سے پہلے میں نے سیاست شروع کی، فلاحی ریاست کا قیام میری اولین ترجیح ہے۔ فلاحی ریاست جہاں قانون کی حکمرانی اور برابری ہو، ریاست مدینہ میں حکمران بھی قانون کے تابع تھے۔ پاکستان کے لیے میرا وہی نظریہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے لیے پیش کیا۔ میرا پاکستان کے لیے ویژن وہی ہے جو بیان پاکستان کا تھا۔ عمران خان نے کہا ایسی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں جہاں غریبوں کی مدد کی جائے، جہاں اقلیتوں کو برابری کے حقوق ملے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، قانون کی عملداری پر یقین رکھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا ہماری حکومت کی پہلی ترجیح غربت کا خاتمہ ہے۔ ایران کے معاملے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب روپیہ گرتا ہے معیشت خراب ہوتی ہے۔ Now, in order to raise people out of poverty, the next most important thing is to have stability. So we have the Afghanistan issue, on the other side Iran, and then our relationship with India. So immediately we try to mend fences. Afghanistan, we have mended fences. We have very good interaction with the Afghan government. With Iran, we hope to play a big part. I have met the Iranian president. Of course, President Trump also asked me if we can play a part. I have also Crown Prince Mohammed bin Salman that we should play a part in reducing the tensions. We're trying our best. It's quite a complex issue, but we will try our best. I don't know how far we'll be successful. عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مسائل پیش آئے، ماحولیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ کے مسائل ہیں۔ پاک بھارت کو غربت، بے روزگاری، گلوبل وارمنگ کا چیلنج پیش ہے۔
भारत से एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की। मोदी को कहा था एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा तौर पर ख़त्म किया। खदशा है कश्मीर में कर्फ्यू उठते ही खूनरेजी होगी, कर्फ्यू हटते ही हालात बद से बदतर होंगे। यूएन आने का असल मकसद दुनिया को मसले कश्मीर की संगीनी से आगाह करना है। उन्होंने कहा कि जंग से मसले हल नहीं होते। खलीज में जंग हुई तो पेट्रोल कीमत बढ़ने से दुनिया में गुर्बत फैलेगी। भारत में इंतहा पसंद नस्ल परस्ताना सोच कब्जा कर चुकी है। भारत में जो हो रहा है वो तबाहकारी है। वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी से जंग में $150 बिलियन का नुकसान, 70,000 जानें कुर्बान की। हर जंग सिर्फ तबाही का जरिया है। When India unilaterally revoked Article 370, the special status of Kashmir, and since then has basically laid siege, put a curfew on 8 million people in Kashmir. My main reason for coming here on this United Nations General Assembly is because I feel that the world should realize this is a serious situation developing. This is just the beginning. The fact that 8 million people for almost 3 days now are under siege. It's dangerous because whenever the siege lifts, I fear bloodshed. And when there's bloodshed, there will be consequences, repercussions which will go much further outside Kashmir. आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ नवाबजादा लश्करी रईसानी की दरख्वास्त की समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने नादरा की रिपोर्ट की रोशनी में केस का फैसला सुनाते हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की कामयाबी को कलअदम करार दे दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बलूचिस्तान के हल्का NA 265 का इलेक्शन कलअदम करार देते हुए दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ नवाबजादा लश्करी रईसानी की दरख्वास्त की समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने नादरा की रिपोर्ट की रोशनी में केस का फैसला सुनाते हुए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की कामयाबी को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 265 में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। BNP के लश्करी रईसानी ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की NA 265 से कामयाबी को चैलेंज करते हुए हल्के में धांधली की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। लश्करी रईसानी ने मौका इख्तियार किया कि 265 में 1,14,000 वोट कास्ट हुए, जिनमें से सिर्फ 50,000 वोट दुरुस्त करार दिए गए, जबकि धांधली के जरिए 64 लाख जाली वोट डाले गए। इंतखाबी अज़रदारी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत 1 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रही। इस केस में नादरा ने वोटों की बायोमेट्रिक रिपोर्ट भी ट्रिब्यूनल में जमा कराई थी। मौजूदा जो PTI की हुकूमत है, अगर उसने मसले हल नहीं किए, कम से कम हमारी बात तो सुनी है। उन्होंने बलूचिस्तान के उन मसलों को तस्लीम किया कि ये जेन्युइन बलूचिस्तान के मसले हैं। उसका हुक्मरानों ने उस बात को तस्लीम करने से गुरेज़ान है कि ये बलूचिस्तान के मसले हैं। हाँ, अगर वो बात करना चाहते हैं इस इशू पर, अगर कल कोई तब्दीली आ जाती है और वो इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं कि फिर हमें जो है ना बलूचिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए फिर बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानी तो नहीं चढ़ाई। एयरक्राफ्ट रिबिल्ड फैक्ट्री कामरा में मुकामी सतह पर ओवरहॉल किए गए JF-17 तैयारों की तकरीबी रुनुमाई हुई। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि ओवरऑल किए गए 4 JF-17 तैयारों में से 2 चीन, जबकि 2 तैयारे मुकामी तौर पर एयरक्राफ्ट रिबिल्ड फैक्ट्री कामरा में तैयार हुए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री कामरा में मुकामी सतह पर ओवरहॉल किए गए JF-17 तैयारों की तकरीब रोनुमाई हुई। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि ओवरहॉल किए गए चारों JF-17 तैयारों में से 2 चीन जबकि 2 तैयारे मुकामी तौर पर एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री कामरा में तैयार हुए। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने JF-17 तैयारों की ओवरहॉलिंग की सलाहियत हासिल करके एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। इस हवाले से एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री कामरा में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं जहां जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद इन्हिसारी एक कुलीदी हैसियत रखती है। अनथक जद्दोजहद की बदौलत पाक फिजाइया को अपने अहदाफ के हुसूल में काबिल जिक्र कामयाबी हासिल हुई है। सरबरा पाक फिजाइया ने खुद इन्हिसारी के हुसूल में चीन की एविएशन इंडस्ट्री के ताउन को सराहते हुए कहा कि 17 तैयारों की ओवरहॉलिंग बिलाशुबा एक बड़ी कामयाबी है जो एयरक्राफ्ट रीबिल्ड फैक्ट्री के इंजीनियर्स और तकनीकी अमले की अनथक मेहनत और अज़म व हौसले की बदौलत मुमकिन हुई। कुछ बात करेंगे हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कश्मीर यकजहती रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। कर्फ्यू के बायस कश्मीर में लोग भूखे मर रहे हैं। कश्मीरी भारत से आज़ादी चाहते हैं। दुनिया को कश्मीरियों का फैसला तस्लीम करना पड़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि कश्मीरियों पर मजालिम के तमाम हरबे आजमाने के बावजूद भारत नाकाम है। तफसीलात के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कश्मीर यकजहती रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। कर्फ्यू के बायस कश्मीर में लोग भूखे मर रहे हैं। मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के बाजार बंद, लोग घरों में महसूर हैं। कश्मीर में हर घर के बाहर भारतीय फौजी तैनात है। भारत ने कर्फ्यू से कश्मीरियों का अज़म तोड़ने की कोशिश की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त भूख और प्यास से मुकाबला कर रही है। टॉर्चर सेल्स में हमारे जवानों को लेके जाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। हमारी बहनों, माओं को, बेटियों को उनके घरों में उनकी इज्जत महफूज नहीं है। लड़कियों को, कश्मीरी बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। और इस वक्त मोदी की जो पॉलिसी है उसकी अपनी मुल्क में आप देख लें कितनी तोड़फोड़ हो रही है। कश्मीरियों को वो कभी हरा नहीं सकेगा, ये उसकी भूल है। और इस वक्त तो उनकी अपनी इकॉनमी तबाह हो गई है। अल्लाह दिखाएगा, कहर आएगा उन सब हिंदुस्तानियों पे जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड किया। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक, सैयद अली गिलानी जैसे लीडर रखने वाली कश्मीरी कौम खुशकिस्मत है। कैदोबंद काटने के बावजूद हुर्रियत कायदीन के हौसले पस्त नहीं हुए। पाकिस्तानी कौम को मौजूदा हालात में कश्मीरियों का हौसला बढ़ाना होगा। मिशाल मलिक ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। कश्मीरी दुनिया की बहादुर तरीन कौम है। दुनिया की कोई ताकत आज तक कश्मीरियों को डरा नहीं सकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत से आज़ादी चाहते हैं। दुनिया को कश्मीरियों का फैसला तस्लीम करना पड़ेगा। भारत यासीन मलिक को कश्मीरियों से जोड़ने की सजा दे रहा है। मिशाल मलिक ने कहा कि भारत आइंदा माह कश्मीरी क़यादत के खिलाफ ट्रायल करने जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी को कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। और ये वही तिहाड़ जेल की डेथ सेल में है, मौत के मुंह में है। उनको इसलिए सबसे भारी सजा मिल रही है कि उन्होंने सारी कश्मीरी कौम को जोड़ा। सईद अली गिलानी साहब, मीरवाइज उमर फारूक साहब और सारी हुर्रियत रहनुमाओं इकट्ठे हो गए और उन सब का एक ही फैसला है कि जब तक हमें अपना आज़ादी का हक नहीं मिलेगा, हम सब एक हैं, हम सब बहन भाई हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और इसी वजह से आपके लीडर, मेरे शौहर, हम सब के लीडर को जो जहरीला इंजेक्शन 3 साल पहले लगा जब वो सेंट्रल जेल में थे, वो इसी सजा, इसी गुनाह जो उन्होंने गुनाह कमिट किया हिंदुस्तान की नजरों में कि आप सब लोगों को एक किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान के दौरे अमरीका से मुतालिक पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत की किस तरह पजीराई की वो ढकी छुपी नहीं। अमरीका हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हम बन रहे हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत की किस तरह पजीराई की वो ढकी छुपी नहीं है। अमेरिका हमें बेवकूफ बना रहा है और हम बन रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इमरान खान के दौरे अमेरिका से मुतालिक पाकिस्तान के आवाम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत की किस तरह पजीराई की वो ढकी छुपी नहीं। अमेरिका हमें बेवकूफ बना रहा है और हम बन रहे हैं। मुशाहिदा पूरी दुनिया ने भी किया, पूरी कौम ने भी किया कि अमेरिका में उसको क्या पजीराई मिली और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान को क्या पजीराई मिली, उसके प्राइम मिनिस्टर को क्या पजीराई उन्होंने दी। वो तो अमेरिका ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, अपनी पोजीशन उन्होंने क्लियर कर दी है कि वो जहां हमें कहा करते थे कि जिस सालिसी के लिए तैयार हैं और हम बगले बजाते थे कि अमेरिका सालिसी के लिए तैयार हो गया कश्मीर के मसले पे, तो उसने अपनी सालिसी की हैसियत तो बता दी है। मेरे ख़्याल में वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है और हम भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसके अलावा तो कोई और तबसरा नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान तो अपने गांव के मसाइल हल नहीं कर सकते, ईरान और सऊदी अरब में सालिसी कैसे कराएंगे। वो पाकिस्तान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। इमरान खान मोदी की फतह के ख्वाहिशमंद थे ताकि कश्मीर का मसला हल हो सके। मोदी ने कश्मीर की हैसियत रातों रात खत्म नहीं की, ये तो उसके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था। हुकूमत कश्मीर को फरोख्त कर चुकी है, अब श्रीनगर को हासिल करने की नहीं मुजफ्फराबाद की फिक्र है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत एहतसाब नहीं इदारों के जरिए अपोजिशन से इंतकाम ले रही है। इंतखाबी धांधली की गलतियां करने वालों को भी सोचना होगा। सबको अपने आईनी दायरेकार में रहना चाहिए। आवाम के हक पर डाका डाला है तो एहतजाज भी होंगे। धरने के लिए अक्टूबर से बेहतर कोई मौसम नहीं हो सकता। इस्लामाबाद लॉकडाउन को मौखर करने का कोई इरादा नहीं है। सियासी जमातें तय कर ले के इंतखाबात के अलावा कुछ तस्लीम नहीं करेंगे। सारी कौम जानती है कि इन्होंने कश्मीर को बेचा है। मोदी ने कोई रातों रात तारीकी में ये काम नहीं किया। उसके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था कि वो अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म करेगा, और हमने कोई उस हवाले से सफारतकारी नहीं दिखाई, बल्कि हमने इंतखाबी मुहिम के दौरान उसकी इंतखाबी मुहिम में उसकी हिमायत की कि हम चाहते हैं कि मोदी कामयाब हो ताकि कश्मीर का मसले के हल में मदद मिले। तो ये सारी चीज़ें आप खुद अंदाज़ा लगाएं। आज जब उसने एक काम कर लिया है और जिससे कि अब ख़ित्ता हमसे चला गया है, अब पाकिस्तानी कौम ये नहीं सोच रही कि हमने श्रीनगर को हासिल करना है। अब पाकिस्तानी कौम ये सोचती है कि मुजफ्फराबाद को कैसे बचाना है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद ने कहा है कि 2 साल से बोर्ड मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए कोशा है। आलमी क्रिकेट मुल्क में खेल को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करे। हमने दुनिया में अपना पैगाम दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली चाहते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज को आसान नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें, जबकि कप्तानी की मुद्दत के ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अकमल और रिजवान स्क्वाड का हिस्सा हैं। मेरे लिए परेशानी की कोई बात नहीं। मेरी कोशिश होगी कि अपने 5वें नंबर पर खेलूं। अगर बोर्ड के बड़े राब्ते में है तो कप्तानी का मसला नहीं। अपने शहर में बतौर कप्तान वनडे सीरीज खेलूंगा। कराची का क्राउड दोनों टीमों को सपोर्ट करता है। देखिए, ऑब्वियसली जहाँ तक रही बात उमर अकमल की, तो अभी तो वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और जहाँ तक रही रिजवान की बात, तो ऑब्वियसली रिजवान टीम में सिलेक्ट हुए हैं। उनका रोल डिफरेंट है, मेरा रोल डिफरेंट है। मैं टीम में विकेट कीपर बैट्समैन सिलेक्ट हुआ और एक वो जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत में सिलेक्ट हुए। तो मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले भी ये लोग सब मेरे साथ खेलते रहे, और अच्छा होता है कि आपके पीछे जो है वो बंदा होता है तो आप ज़्यादा जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली सबका डिफरेंट रोल है, और
मैं कोशिश करूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम की जीत में फतवात में अहम किरदार अदा करूँ। सरफराज अहमद ने कहा 2 साल से बोर्ड मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिश है। आलमी क्रिकेट मुल्क में खेल को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करे। हमने दुनिया में अपना पैगाम दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली चाहते हैं। कप्तान का कहना था कि 300 से ज़ायद रन्स की इनिंग जरूरी है। ओपनर्स को अच्छा स्टार्ट देना जरूरी है। बाबर आजम मुस्तकबिल का बेहतरीन बैट्समैन साबित हो सकता है। फखर जमान जज्बाती है, जबकि मैं अपनी खामियों और गलतियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल के जवाब में सरफराज अहमद ने कहा कि टेस्ट में फास्ट बॉलर्स का फुकदान है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर तैयारी करेंगे। बतौर टेस्ट कप्तान जिम्मेदारी का फैसला अभी दूर है। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, बाबर आजम बिल्कुल उस कैटेगरी में बिल्कुल खड़ा हो सकता है कुछ अरसे बाद। जिस तरीके से वो अपना हार्ड वर्क कर रहा है, जिस तरीके से वो अपनी एफर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2-3 सालों में जिस तरह की परफॉर्मेंस जारी है तो वो भी उसका शुमार भी इन प्लेयर्स में होता है और अभी भी अल्लाह का शुक्र है होता है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह इस तरीके से अगर अपने आप को कैरी रखता है तो बिल्कुल जो है वो इन खिलाड़ियों की जो फहरिस्त है उसमें शामिल हो जाएगा बहुत जल्द। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।